Good evening, students. Today we'll see the book back exercise and subject enrichment activities for the lesson Kabaddi, lesson 10, class 4, New Gunjan book. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friend circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it will support my effort which I take every day to post the videos. Now let's see the subject enrichment activities. So here they have given the images, right? Let's read what they are trying to say. These are the rules and regulations which everyone has to follow to play kabaddi. खिलाड़ियों की टी शर्ट और निक्कर पहचानना चाहिए. So you have to identify the colors of the team. विरोधी पाले में गए प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को निरंतर कबड्डी कबड्डी बोलना चाहिए. So one person moves to the विरोधी's team from one pala to the other, he has to continuously say कबड्डी कबड्डी कबड्डी. Okay. प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को हाथ पांव और कमर से ही पकड़ा जा सकता है. So if you want to catch the competitor, they have to hold the person only in hands, legs and in the hip. Okay. See here, they are trying to hold by hands in the hip or by the legs. पकड़ने वाले खिलाड़ी को अपने पाले में ही रहना चाहिए and they have to be the whoever is trying to catch the person, they have to be within their limit. அந்த பாலாக்குள்ள தான் இருக்கணும். खिलाड़ियों को कोई आभूषण नहीं पहनना चाहिए. सो नो प्लेयर शुड वियर एनी ज्वेलरी और सम रिंग्स और चेन्स एक्सेट्रा. प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को गर्दन कपड़ों और बालों से नहीं पकड़ना चाहिए. सो यू शुड नॉट होल्ड द कंप्यूटर बाय यूजिंग द हेयर और बाय द नेक और बाय द ड्रेस. प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को धक्का नहीं देना चाहिए. यू शुड नॉट पुश द पर्सन. ओके. दूसरे पाले में नहीं जाना. यू एंड सी दिस पर्सन हैज कम टू दिस अदर साइड ऑफ द पाला. यू कैन नॉट डू लाइक दैट टू होल्ड द पर्सन. यू हैव टू बी विद इन योर पाला एंड यू कैन नॉट पुश द competitor. So these are the few rules which you have to follow while playing kabaddi. Now we'll see the subject enrichment activities. अपने प्रिय खेल पर कुछ पंक्तियाँ लिखो. यू हैव टू राइट फ्यू लाइन्स ऑन ए फेवरेट गेम. पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है. अलॉन्ग विद द स्टडीज़ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इस विषय पर कक्षा में चर्चा करो. यू हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. फुटबॉल खेल के विषय में इन बिंदुओं पर परियोजना तैयार करो. बेस्ड ऑन दिस hints which has been given, you have to write a project for football game. खिलाड़ियों की संख्या, the number of players in the game, इस्तेमाल होने वाला सामान, the things that are used in the game, समय सीमा, what is the time length to play the game. So based on these hints, you have to write something related to football. So I have written few things. இதுதான் எழுதணும்னு இல்லை. This is just for you to get an idea. Here I have taken a paragraph to write about cricket. We can simplify and write मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है. इस खेल में बॉल और बैट का उपयोग होता है. दो टीमें प्रतिस्पर्धी करती है. 2 teams will play. दोस्तों के साथ एकजुट होने का मौका देता है. To mingle with the friends, this game helps us. So it is a मनोरंजन के साथ साथ along with the entertainment, it increases our confidence. मनोबल और साझा करने का एक सुंदर तरीका है. Understood these things you can write. Next one, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है. So along with the studies, sports is also important. What we can discuss is शिक्षक is PT teacher. So the PT teacher Anil Kapoor, according to him, लाइक खेलने कूदने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है. सो व्हेन अ प्लेइंग द किड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. परीक्षाओं की तैयारी के दौरान भी बच्चों को खेलने के लिए कुछ समय ज़रूर देना चाहिए. ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम्स ऑल्सो वी हैव टू गिव सम टाइम फॉर द किड्स टू प्ले. तो खेलने के बाद बच्चे में पढ़ाई की प्रति रुचि बढ़ती है. सो आफ्टर दे प्ले ऑल्सो दे विल हैव एन इंटरेस्ट टू टेक द बुक्स एंड रीड. सो खेल हमारे जीवन का अवश्य हिस्सा है. सो प्लेइंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टू कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड माइंड हेल्थी, द गेम्स टेक्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ। खेल कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स जो हमारे शारीरिक के साथ मानसिक विकास में मदद करते हैं। अलॉन्ग विद द फिजिकल स्ट्रेंथ दे ऑल्सो डेवलप अस मेंटली. So even if we keep on reading regularly continuously, that will make us tired, right? So लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति हो जाती है. We feel loneliness or some depressed state. ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है. So during that time if you go and play, that will bust out your stress and you will also feel relaxed. इस तरह दिमाग का सही विकास के लिए शिक्षा ज़रूरी है. Since to improve mentally we need education. To improve physically we need sports also. So along when you are having a sport with you, you will have a sportiveness, team भावना सीख सकते हैं. कई स्कूलों में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन खेलों पर नहीं. But in few schools they don't give importance to sports. And there are few schools where sports is only limited. So these are the things which we have to consider and give equal consideration. So हमें पढ़ाई के बराबर खेलों को महत्व देना चाहिए. स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसे रेगुलर सब्जेक्ट की तरह नियमित एक्टिविटी करनी चाहिए. So we should have a regular activity, okay, to increase the sports in our daily routine. फुटबॉल खेल के विषय में लिखना है, राइट. फुटबॉल मैच 90 मिनट्स का होता है. सो फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है. 90 मीन्स 90 मिनट्स. मैच में 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं. सो 45 मिनट्स देयर विल बी ब्रेक, ओके. 45 मीन्स 45. दोनों टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं. सो ईच एंड एवरी टीम विल हैव 11 प्लेयर्स. सो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया में लगभग हर देश खेलता है. सो वर्ल्ड ओवर ऑल द कंट्रीज आर प्लेइंग फुटबॉल. ईजी गेम, इट्स ए वेरी ईजी, सरल और आसान है. बच्चे किसी छोटे मैदान पर भी आसानी से खेल सकते हैं. इवन इन द स्मॉल ग्राउंड दे कैन प्ले. सो दोनों टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं. देयर विल बी 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. वी हैव कंप्लीटेड द समय सीमा एंड खिलाड़ियों के समय. इस्तेमाल करने वाला सामान. व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू टेक. शॉर्ट्स, ट्रैक्स, पतलून, मोजे, हाथ पैर के सहारे से जाने का सुरक्षा साधन. सो यू हैव टू हैव द गार्ड्स फॉर द लेग्स एंड हैंड्स एंड शूज़ एंड फुटबॉल. दिस आर द थिंग्स विच इज़ नीडेड टू प्ले फुटबॉल. बांग्लादेश में कबड्डी किस नाम से जानी जाती है. सो इन व्हाट नेम कबड्डी इज़ फेमस इन बांग्लादेश. ஸோ இங்கே வந்து கபடின்னு சொல்ல மாட்டோம். இன் தமிழ்நாடு इफ़ यू आस्क they will say चडगुडू. ओके. इंटरनेट की सहायता से पता करो what is the name given to kabaddi in Bangladesh. So in Bangladesh kabaddi is known as with a different name called ha-do-do. Kabaddi is the national sport for Bangladesh given official status in 1972. So what it is known as ha-do-do. ये भी जाने. सो लर्न दिस ऑल्सो. भारत में कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है. सो इन इंडिया कबड्डी इज़ नोन इन डिफरेंट नेम्स. In India, kabaddi is known in different names. दक्षिण भारत में, so in the southern part of India, South India, चडगुडू and पूर्वी ईस्टर्न पूर्वी भारत में ईस्टर्न इंडिया हुतुतु. So हुतुतु के नाम में प्रसिद्ध है, is famous. So what are the two names given? In South India it's चडगुडू, in Eastern India it is हुतुतु, and in Bangladesh it is हा-डू-डू. विश्व स्तर पर भारतीय कबड्डी टीम सबसे सफल टीम मानी जाती है. सो इन द वर्ल्ड ओवर द इंडियन कबड्डी टीम इज़ द बेस्ट टीम. सो वी आर हैविंग ए कबड्डी लीग मैच इज कमिंग फ्रॉम December 3rd, राइट. सो इफ यू हैव एन इंटरेस्ट गो एंड वॉच दैट. होप यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़. In the next video, we'll see the book back exercise and question answers. Thank you, students.